अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। इन दिस शो वी टॉक अबाउट ऑल द ट्रेंडिंग एंड अपकमिंग लेटेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज़ फ्रॉम अराउंड पाकिस्तान एंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ फॉर टुडे। कहा जाता है कि इस दुनिया में एक ही तरह के दिखने वाले 7 लोग मौजूद होते हैं एट एवरी गिवन टाइम। इसी तरह का एक सिचुएशन सामने आया है वो अबाउट वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट स्टार्स Ali Rehman Khan, who's a very popular Pakistani actor, has recently been said that he resembles a lot with the Indian television actor Nakul Mehta, and they had a little chit chat on Twitter about it as well. Nakul Mehta said 6 degrees of separation and all that, and Ali Rehman Khan responded by saying that Kumbh ka Mela was not actually a good idea. Nakul Mehta also said कि अगर कभी भी अली रहमान खान बिजी हों किसी भी वजह से और उनको कोई डेट्स फिल इन करने के लिए किसी की ज़रूरत हो तो he would love to step in. I'm sure Nakul Mehta would love to come to Pakistan and actually work as a replacement for Ali Rahman Khan. But the resemblance between the two is actually amazing. I'm sure कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर रहा है जहाँ पे we had a first ever crush and we were obsessed with this person and the imaginary life and future we were gonna have with them. फिर चाहे वो heartbreak ही क्यों ना हो. I'm sure all of us have experienced a very first heartbreak in all our lives as well. And it's so good to know that our favorite celebrities from Pakistan have also experienced the same thing. Usman Mukhtar was recently giving an interview जिसमें उनसे पूछा गया about his first ever crush and his first ever heartbreak, and he talked about कि किस तरह से he was just in 4th grade in a boarding school जहाँ पे उन्हें एक लड़की पसंद हुआ करती थी, and he always wanted to tell her how much he liked her, but कभी भी courage नहीं इकट्ठा कर पाए, जिसके बाद sadly enough next year she actually ended up moving and he could never tell her कि how much he liked her. I mean, I don't know why I wasn't in that boarding school. I would have definitely asked him if he liked me or not. And moving forward, he also continued to say that his first ever heartbreak was actually at the age of 14 or 15 when he asked a girl out and she told her actually no. I mean, it's sad, but I think we all have those experiences. And so it's so good to know that we can relate on that with our favorite celebrities as well. Aren't we embarrassed? Aren't we ashamed? Shanira Akram. Recently talking about the current situation in Karachi, Shanira Akram grabbed the attention of her followers. उन्होंने अपनी ट्वीट में बात की कराची के हालात के बारे में. उन्होंने बात की कि किस तरह से पूरा साल हम लोग कचरा इकट्ठा करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, जिसके बाद बारिशों की वजह से all that rubbish goes into the ocean. और फिर again because of water overflowing back into the cities, वही rubbish दोबारा सड़कों पर आ जाता है for the world to actually see it. And she asked her followers and all Pakistanis कि aren't we ashamed? क्या अब जब तक रबिश की बारिश नहीं होगी हमारे ऊपर तब तक हम लोगों को शर्म नहीं आएगी और क्या तब तक हम लोगों को एहसास नहीं होगा कि क्या हो रहा है? What is happening in Karachi has really been a sad situation for all Pakistanis as well, and for all the authorities and relevant bodies in Pakistan as well. And I'm so glad that our celebrities are actually sharing our frustration and talking about it as well to bring some attention to the cause. And it's very immediate कि हमारी government bodies की तरफ से कोई ना कोई steps लिए जाएं to actually counter the situation. ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में कि जब भी कोई एप्लीकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली ऑन द इंटरनेट ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाता है तो उसको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है. Some users have actually made fun of the whole situation by saying कि Pakistan is actually kind of Banistan, and I do agree because पाकिस्तान में जैसे ही कोई चीज़ पॉपुलर होती है उसको बैन कर दिया जाता है. इस सिचुएशन में जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली डेटिंग एप्लीकेशंस को उनको भी रिसेंटली पीटीए की तरफ से बैन कर दिया गया है. उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में अनाउंस किया कि वो इन डेटिंग एप्लीकेशंस को इसलिए बैन करें बिकॉज दे एक्चुअली आर इनकरेजिंग इमोरल एंड इनडिसेंट कंटेंट जो कि पाकिस्तान के लोकल लॉज के खिलाफ है.
जिसके बाद उन्होंने ऑल्सो एक जगह दी है इन एप्लीकेशंस को और उनकी मैनेजमेंट को कि अगर वो ये इनडिसेंट और इमोरल कंटेंट को हटा देते हैं अपनी एप्लीकेशन से और पाकिस्तान के लोकल लॉज को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को रन करते हैं, उसके कंटेंट को रन करते हैं, दे वुड बी अलाउड बैक to be used in Pakistan. I'm sure a lot of people are really saddened by this whole thing, but we hope कि पीटी अपने डिसीजन को रिवर्स कर लेगी. I mean, Pakistanis are so good at giving advice. And I don't mean general advice, but I mean advice जो कि उनसे मांगी नहीं जाती है. As Pakistanis, पता नहीं क्यों हम लोगों को बगैर मांगे एडवाइस देने की आदत होती है. दूसरों के बिजनेस में या दूसरों की लाइफ में अपनी नाक और टांग घुसाने की आदत पता नहीं हम पाकिस्तानियों में से कब जाएगी. एंड ऐसा ही हुआ एज़रा बेल्जिक के साथ, जब उनकी एक पोस्ट के ऊपर उन्हें एक कमेंट मिला फ्रॉम अ फैन इन पाकिस्तान, हलीमा बाजी प्लीज डू नॉट वेयर सच ड्रेसेस. बट हलीमा हैड अ वेरी गुड कम बैक फॉर द फॉलोअर्स सेइंग कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं किस तरह से ड्रेस करती हूँ तो प्लीज डू नॉट फॉलो मी, thank you. Keeping the respect as well, Ezra Belgic had a very good comeback. I mean, I think पाकिस्तानियों को आदत डाल लेनी चाहिए कि उनको किसी भी तरह की एडवाइस नहीं देनी चाहिए, स्पेशली ऐसी एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं जो उनसे मांगी भी नहीं गई हो. तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़. हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में अगली दफ़ा की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको हमारे शो में अगर कोई चेंजेस चाहिए. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल ताकि आपको लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. अल्लाह हाफिज़.